And now let me know once you are able to see my screen. Yes, we can. Okay, yesterday we were discussing on this slide regarding the portfolio of SAP in S/4HANA. And we already discussed, we are going to have understanding about SAP S/4HANA FICO module, which is the main module in SAP. And apart from this module, we have so many other modules also. But without FICO, we will not have any project where we will be working. And if you will have different modules also, they will be also having integration with finance. So this is the portfolio of SAP for functional consultant. Okay. Okay, then I'm moving to the next slide. Now from this slide, this is the main slide. I would say that if you feel that you are unable to understand anything, then stop me and then we can discuss. Okay. Okay, so system landscape in SAP. This system landscape will be created by basis consultant. Basis consultant will create three servers. One is development server, second one is quality server, third one is production server. In development server, mainly we will have three clients, or you can say three houses, or you can say three systems. But in SAP term, we say we say clients. So first client is golden client, second client Okay. is testing client, third client is ABAPer, which is development client. Let's talk about client 100 and client 200. Name you can give, or maybe basis consultant give name any three digits name he can give. Like maybe he will be giving 001, 002, something like that. But in this slide, it is mentioned 100, 200, so I will be using 100, 200. So in development server, in the 100 client, we will be doing the configuration. We need to do the implementation in golden client, which is client 100. Once our configuration is complete, then we will move all our changes from client 100 to 200. And to move the changes from one client to another client, we will be using TR process. Transport Maybe request. just give me a second. I'm getting my voice back. Surinder, can you just mute and just unmute when you want to speak? Because as of now, I'm getting my voice back. Let's Yes, let's I just. see. Hmm. Okay, now do. Okay, so when we need to move our changes from client 100 to client 200, we will be using the process for the moving the changes from one client to another client, that is TR. TR means transport request process. As of now, we are not talking about client 300, but for functional, we have client 100 and client 200. So once your changes are moved in testing client, you will be doing the testing in 200 client. Once you feel that everything is working fine as per business process, then you would be moving your changes from development server to quality server. And then in quality server, you will be asking business to do the testing and confirm. Once they confirm, then you will be moving your changes from quality client to production client. And for that also, you will be using the transport request process. So for functional consultant, we will be having this clients, client 100, client 200 in development server. And sometime you would be doing testing in quality client also. And then you will hand over system to business to do the testing in quality client. And then production client is for end user to do the production activities on daily basis. So this is landscape for functional consultant. Now let's talk about development client. This client is for ABAPer. As we have discussed that when a standard functionality is not there, then we would be taking the help from ABAPer. ABAPer would be working in development client, which is 300 in this slide. And then whatever ABAPer would be doing, then we would be doing testing in testing client. And then we will be moving the changes to quality client. Same process. Is it clear regarding the system landscape? And this system landscape will be created by technical consultant. That technical consultant will be basis consultant.
Is it clear regarding the system landscape? Yes, sir. So one thing, Puneet ji, Hmm. ये the information will flow from development server Hmm. to golden client, No, no. and Golden client is the starting point. okay, Golden okay, client starting point. in golden client you would be doing the configuration. Barabar. Then it Hmm. will go to sandbox. That is your For testing testing. client. Yes. So then ABAP का रोल इसमें कहाँ पे आएगा? इसमें वेपर का रोल है ही नहीं. There is no role in this functionality. If you are doing functional activities, you are doing the standard implementation. वेपर का रोल नहीं है. Okay, okay. But एक client है for ABAPer. If हाँ, something we are enhancing, yesterday as I explained, standard report is not available. Like report is available, but we want to add some extra field also. Then ABAPer would be working in this client. got it, got it. कुछ भी Understood, कुछ भी enhance करना है, ABAPer would be working on this client. understood. Got it. Clear Okay. now. Yes, Now shall I move to next slide? yes, please. Yes. Okay. This is system landscape screenshot. It is okay. Then I was mentioning regarding the transport request here. We will be taking the process to move the changes from one client to another client or one server to another server with the help of TR process. That is this one. Your TR will look like this. This is the TR number. This is the user who is working on this TR, and this is the description. What description that user mentioned in the TR. We will have two types of TR. First one is workbench, second one is customizing. Workbench request is for ABAPer. Customizing request is for functional consultant. In 99% cases, functional consultant will have customizing request. In some cases, we will have workbench request, which we will see while going for the further classes. Based on the topic, I will show you and I will tell you where we will be getting the workbench request also. But 99% cases, we will be having customizing request, and that I can show you in the system also. One you mentioned workbench request, another you know customizing request. Yes, customizing means configuration. Hmm. Workbench means you are doing some kind of enhancement or development, Enhancement. something Yeah, like that. yeah. So to see the request, transport request, we have a transaction code SE09. Okay, so here we have option. We want to see workbench customizing request, and modifiable means as of now it is not released. You can still add your work in the existing TR. If you have released the TR, then you cannot add. You can only move to further client or further server. But as of now, we will be seeing the modifiable, which is active TR. And you can mention the user for which you want to see the transport request. So first of all, let's click on only customizing. So we have around 7, 8 customizing requests in user, this user, like that. And here you can see this is customizing request. Now, if I open this one, this is main tier, this is child tier. And if you click on child tier, then you will have activities, what kind of activities you are doing. Let me open the this one. And then you can see these are the activities we have completed in this transport request. And whenever you will be moving this transport request to different client or different server, all these configuration will move to that system. It is going to automatically with the help of transport request. Okay, now let me go back and then see the workbench request. As of now, know there is no workbench request for my ID because we have not created any workbench request. Let's see. I put star and now I can see workbench request for, yeah, it is workbench request and there are some workbench. This user has created one workbench request and this is, I would say, ABAPer development and correction. They are doing something. Define access sequence. This is the development, not development, but SAP has suggested to do to create access sequence for the GST purpose, which we will be seeing when we will do the GST implementation. This is pricing procedure. Here also, Vapor is doing some kind of define access sequence for pricing configuration.
Pricing configuration is for SD module. So this is workbench request. And description should be very, very much clear so that you will be able to understand what is there in the transport request. Otherwise, you need to click like that and you need to see what configuration or what development we have. It is not like that that you mention something and you cannot understand the TR. You can understand the TR, like what is the activities you have. You will click on this IMG activity, system will take you to that activity. See, this is shipping kind of development or maybe basic function sales and distribution configuration. They have done it, something like that. So this is SD development. Okay, so this is workbench, this is customizing. Now let's see customizing which is released. Do we have any released one? We have some of the TRs are released. This one is my TR 51. Let me just open only this one. So we have one TR which is released. It means I have TR where I have completed my work and I have released. Whenever you will release, you will see this tick option. Okay, it means now you cannot add any new thing in this transport request. You have released, now this TR is only you can see in this system and you can use this TR to move your changes, whatever you have in this TR. I have only company code creation in this TR because the same thing I was explaining to somebody else in the another batch that if we release the TR, we won't be able to add anything in the this TR. We need to have TR which is in the modifiable status, then only we will be able to add our new configuration or our new implementation. Or if we do not have any TR active or in the modifiable status, then we will create the new TR. Or if we are doing something different which should not go to the existing tier, in that case also we will be creating the new tier. Understood? Yes. Okay, then I move to the next slide. So type of teams. When we work in SAP project, we will have different type of teams. First team is first team is consultant, second team is CTM, third team is end user. So in consultant, we will have two types of consultant. First one is functional consultant. Second one is technical consultant. As I mentioned here, basis consultant. This is technical consultant. And FI consultant would be functional consultant for which we are going to take the training. But we will have more functional consultant and we will have more technical consultant also, which we will see in the coming slide. Then CTM. CTM is from business side, who is having good knowledge about the processes like AP process, like AR process, asset accounting, banking. So business will assign or mention the name who would be giving the business knowledge to functional consultant. Suppose we have two CTM who are going to give complete business process knowledge to functional consultant and they are giving all the knowledge to functional consultant. Functional consultant will understand and will note it down in one of the document, and based on that document and based on the discussion with CTM, functional consultant will implement SAP system as per business requirement. So this is CTM, and then CTM would be doing testing in quality system. And then we have end user. End user, you can say in finance term, it is accountant who are going to do the end-to-end day-to-day activities in production system. They are least bother about quality system, they are least bother about development system, they are least bother about how system is going to be designed. But they know they need to post vendor invoice, they will be posting in the production system. If something is not working as per them, then they will highlight to CTM and then CTM will have a discussion with functional consultant to correct that functionality, or maybe they want to have another functionality also. So this is the complete process flow for type of teams in the SAP project. Is it clear? Yes, sir. Yes, but the core team member, Punajit, the Mhm, core team member, mhm. while he should have the strong domain knowledge, apart, Be- yeah,
Yeah. Along with that, I think he should get some knowledge on the consulting part as well. No, 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 Not no, required. not required. But if CTM, like definitely CTM will be able to get the consultant knowledge after having so many discussion with functional consultant, Got it. Got it. but he will not be able to get complete information because configuration consultant will not teach to CTM. Hmm. But some work functional consultant would be doing in the system. If CTM is eager to learn, He CTM will can learn it. CTM will sit with functional consultant and will learn some of the parts, not everything. Got it. Got it. For example, I am good in domain, so now I am learning functional part, Yes, right? you are investing extra effort, you are investing extra time to learn outside of from your office. But some Got it. CTM don't give damn about the learning. They say that I am good in the domain and my work is going fine, so I don't need to learn new things. But Got it. if anybody is learning new thing, that will help in future somewhere, I would say. Yeah. Yeah. Okay. Making sense. Yes. Mhm. Now let's move to the next slide. Okay. As I mentioned, we will have different kind of functional consultant. FI means finance, MM means material management, SD means sales and distribution, HR means human resource, PS project system, QM quality management, PM project management, something like that. Then we have technical consultant, ABAP, basis, BI, BW, PI, security, CPI. ABAP is the consultant who would be doing the coding in the system, which I told you in system landscape. We will have different client for ABAP. Let's understand first functional consultant, what functional consultant will be doing. So functional consultant, they will implement, they will support, they will roll out the system for their module like FI. FI consultant will implement finance module related work in SAP S/4HANA system. Same way, MM consultant will implement MM related activities in the system. Now, technical consultant, ABAP consultant. ABAP consultant, we call them ABAPer. They will be doing the coding as per business requirement. What is the business requirement? Some things which is not available in the standard system. For that, a developer will be doing the coding as per business requirement. But a developer cannot do the coding without having complete logic from functional consultant. So functional consultant will get in touch with business or maybe CTM to understand the process, and based on the process, functional consultant will prepare the logic how this process can be developed. Then logic will be given to ABAPer, then ABAPer will be starting. That is why in सर SAP functional एबेपर consult, का एबेपर का रोल तो तभी आएगा ना सर जब कुछ कस्टमाइजेशन होगी स्टैंडर्ड के अलावा, हाँ हाँ, है ना? हाँ, मतलब ठीक है। स्टैंडर्ड के अलावा कस्टमाइजिंग होगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हमें हर प्रोसेस में ABAPer की हेल्प चाहिए होती है। हुँ, जैसे कि हमें इनवॉइस बनाना है वेंडर का, तो ओके। स्टैंडर्ड में तो वो सारी चीजें नहीं होंगी जो हर बिजनेस चाहता है। हुँ, तो मे बी एबीसी कंपनी में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एबीसी कंपनी वांट्स टू हैव जीएसटी नंबर, ओके, राइट की जगह लेफ्ट साइड पे चाहिए उसको, ओके। ऊपर की जगह नीचे चाहिए, तो तो वहां सर पे ये ABAPer। छोटी-छोटी क करेक्शन के लिए भी हमें एबेपर के पास जाना पड़ेगा, ये फंक्शनल नहीं कर एग्जैक्टली, सकता? नहीं 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 ओके, नहीं। मतलब जैसे अभी जो मेरा है, मैं अभी B1 को बीच में ला रहा हूँ, तो इसमें हाँ क्या छोटी-छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये हम फंक्शनल भी कर सकते हैं कोडिंग के अलावा। तो इसमें हाँ, हमें एफ एस4 के लिए हमें एबेपर के पास ही जाना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। ABAPer के लिए नॉट हर चीज के लिए, मतलब हुँ। कि हाँ, जो चीज स्टैंडर्ड में अवेलेबल नहीं है उसको अगर आप डेवलप कराना चाहते हो तो आपके ABAPer की हेल्प नहीं, नहीं, चाहिए। मैं डेवलप नहीं जैसे अभी जो बात हुई थी कि एक कॉलम राइट साइड है, अगर लेफ्ट साइड है, उसके लिए भी हमें एबेपर के पास जाना पड़ेगा। वो मैंने मेंशन किया इनवॉइस, अगर इनवॉइस पे राइट साइड पे कोई चीज आ रही है, हमें लेफ्ट साइड पे करनी है, तो हमें हाँ, ABAPer से हेल्प लेनी पड़ेगी। कल ओके। हम डिस्कस कर रहे थे, हमें कोई फील्ड ऐड करनी है हाँ, वेंडर रिपोर्ट में, या अगर वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है फंक्शनल के लिए ऐड करने के लिए, तो आप कर सकते हो, और वो फंक्शनैलिटी अवेलेबल है जो हमने कल डिस्कस करी थी। नहीं वो तो मेरे को समझ में आ हाँ गया, बट यही था कि अगर हमें लेफ्ट और कॉलम राइट कॉलम भी अगर ऐड हाँ हाँ, चाहिए, उसके लिए भी है। फॉर्म्स पे इनवॉइस बनवाना है, उसके लिए जीएसटी नंबर राइट साइड पे आ रहा है, लेफ्ट पे करवाना है, आपको ABAPer की हेल्प चाहिए। नहीं वो तो ठीक है, बट मैं यही कह रहा था कि अगर एक चीज़ को मतलब लेफ्ट और राइट साइड भी करना है, उसके लिए भी हमें एबेपर के पास ही जाना पड़ेगा। बट देखो Yes. ना, Yes. डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे अगर इनवॉइस का लेआउट है कि हाँ, मेरे पास वेंडर इनवॉइस मेरे पास है या कस्टमर इनवॉइस, ओके, उसका लेआउट पे आपको कुछ भी करवाना है, वो ABAPer के पास जाना पड़ेगा, चाहे उसका आपको जीएसटी का ना लास्ट में बीच में कॉमा भी लगाना है या तो ओके, उसके लिए आपको ABAPer के पास ही जाना पड़ेगा। बट ओके।
उस एबेपर के पास जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये लॉजिक मुझे देना है एबेपर को। नहीं वो तो एबेपर ठीक। एबेपर काम ही नहीं कर सकता विदाउट फंक्शनल कंसल्टेंट। नहीं वो मैं समझ गया, मतलब अभी क्या होता है कि अगर हम इससे छोटे ईआरपी में जाते हैं, तो हाँ, उसमें ना हमें पता होता है कि हम खुद भी लगा सकते हैं, मतलब छोटी-छोटी चीज़ों के लिए हमें डेवलपर के पास नहीं जाना पड़ता। मतलब आप वहाँ पे एसएपी बी वन में अगर आपके पास इनवॉइस लेआउट हाँ, फॉर्म है कस्टमर का, हाँ, तो आप हाँ। वहाँ पे खुद चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। या इसमें नहीं है। हाँ, वही मेरे को कन्फर्म करना था। ठीक है, ठीक ओके, है। ओके। ठीक है, फिर आते हैं बेसिस कंसल्टेंट। बेसिस कंसल्टेंट जो होते हैं, दे विल सेट अप द सर्वर, they will set up the system landscape, user id creation, authorization to user, patch upgrade, version upgrade. These are the activities will be done by basis consultant and so on. और भी activities होंगी, but I mentioned some of the activities for basis consultant also. So basis consultant वाला काम भी कुछ SAP B1 में आप कर सकते हैं। कुछ है लाइक ऑथराइजेशन गिवन तो वैसे फंक्शन कंसल्टेंट दे सकता है, बट एसएपी में वो ट्रांजैक्शन कोड होती है, वो बेसिस की होती है वैसे। ओके। ओके, now let's talk about ABAPer in depth. So these are the बट इससे activity. पीछे वाली जो अभी हम्म, स्लाइड थी उसके अंदर ये रोल आउट का मतलब क्या समझाओगे? सपोर्ट तक तो मुझे पता है क्या होता है, रोल आउट का मतलब? मैं एक सेकंड, मैं इस वाली स्लाइड पे बताऊं, हाँ, यहाँ पे हाँ, मैंने हाँ। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट लिखे। हाँ, हाँ। ठीक है, हुँ, अभी इसमें अपार्ट फ्रॉम रोल आउट डू यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन? अच्छा, एक चीज हम्म ये है मुझे, जो उसको बोलते हैं एस फोर हाना, एस फोर हाना, राइट? हम्म हाना इज द बैकएंड application that you डेट understood yesterday. डेट database डेटाबेस। डेटाबेस database and the front end is Fury. नो नो, फ्रंट एंड इज गुई एंड फ्यूरी। GUI and Fury, right? या गुई पे अभी हम जो देख रहे हैं, मतलब हम जो प्रैक्टिस करेंगे, जो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, वो गुई पे करेंगे। Correct. फ्यूरी पे एंड यूजर मेनली टेस्टिंग करते हैं, मतलब वी कैन डू सम कॉन्फ़िगरेशन इन फ्यूरी आल्सो, बट इट इज गुड टू डू द कॉन्फ़िगरेशन इन गुई। इट इज इजी टू यूज दिस गुई। हम्म। सो फ्यूरी बीच में कैसे आ जाता है? क्योंकि इफ यू लिंक द डॉट्स, हम्म HANA is the database, हम्म GUI is the front end screen, that is the हम्म visibility or visualization part, हम्म right? So हम्म फ्यूरी बीच में कहाँ पे आ जाता है? फ्यूरी is another visualization part. एंड अनदर विजुअलाइजेशन पार्ट, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये गुई है, ये GUI है। हम गुई पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, गुई पे ही हम टेस्टिंग करेंगे। बराबर। इसका बट बैकएंड में HANA है। इसके बैकएंड में हाना है, बट कई कंपनीज में क्या होता है, ये गुई दिया ही नहीं होगा आपको, आपको फ्योरी दी होगी, आप फ्योरी सर। पे काम करेंगे। अच्छा, हाँ सर, हमारे आइदर यहाँ फ्यूरी। डायरेक्टली फ्यूरी है। हाँ सर। हाँ, तो आपको हाँ। गुई देखने को नहीं मिलेगा, हम्म, आपको फ्योरी देखने को मिलेगी। फ्योरी पे ही काम करोगे, क्योंकि कई चीजें एक्स्ट्रा हैं फ्योरी में। जैसे कल मैं मेंशन कर रहा था ग्रुप रिपोर्टिंग, ग्रुप रिपोर्टिंग फ्योरी पे ही चलती है, गुई में समझ चलती ही गया, नहीं। समझ ईसीसी गया। में तो थी ही नहीं, एक या दो ट्रांजैक्शन कोड दिए थे, उसमें मेरे ख्याल से उस बिजनेस का काम नहीं चलता था। अब नाउ इन दी फ्योरी एसएपी हैज मेड फ्योरी फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग ऑल्सो। समझ गया, तो समझ दोनों गया। एक तरह से एप्लीकेशन है आपके लिए। कई हम्म, कंपनीज में दोनों अवेलेबल होती हैं आपके लिए, आप किसी में भी काम करिए। कईयों में खाली एक अलाउ होती है, फ्योरी। गुई तो ईसीसी, अगर आप ईसीसी है तो आपके पास गुई होगा, फ्योरी होगा नहीं। समझ गया, समझ गया। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव मल्टीपल फ्रंट एंड एप्लीकेशंस, हम्म फ्यूरी, गोई एंड एवरीथिंग, इसीलिए उसको एस फोर हाना बोला जाता है। नहीं, एस फॉर हाना मेनली तो डेटाबेस के उस पे बोल डेटाबेस पे रहे, बोला क्योंकि जाता पहले ओरेकल का डेटाबेस यूज कर रहे थे, है। ओरेकल, आईबीएम और अदर थर्ड पार्टी, बट नाउ एसएपी इज यूजिंग देयर ओन डेटाबेस इन द बैकएंड। अंडरस्टूड। ठीक है, यस। यस। नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। So we have ABAP language of SAP. In SAP, we have ABAP language. As in the market, you know C++, Java, Python, R, there are so many languages. But in SAP, we have ABAP language. For that ABAP language, we have ABAPer, ABAP consultant who would be doing on this language. We are not going to like use ABAP language to implement or to enhance anything. We are functional consultant. ABAPer would be using ABAP language to implement. These are the activities: report, interface, conversion, enhancement, form, workflow, like that. And the complete activities, we call it RICEFW, RICEFW. So for ABAPer, we can say that ABAPer will be working on RICEFW. Let's understand one by one. R stands for report. If we want to have any report which is not available in the standard SAP system, or maybe we want to enhance standard report,
Then ABAPer would be doing the coding to develop that report as per business requirement. And that business requirement, functional consultant will get it from business and will explain to ABAPer and give complete logic in the documentation. Then ABAPer will be starting the working to implement the that enhancement to have that report as per business requirement. Understood? Yeah. Now interface. I stands for interface. When we need to communicate from SAP to SAP, another SAP. Maybe you have two SAP system in your company. Suppose you have two companies in your two company codes, and you want to send data from one system to another system. For that, we need to develop the interface, or maybe from SAP to non-SAP. In that case, also we need to set up the interface for sending data from SAP system to another SAP system or non-SAP system. For that also, we will be taking the help from ABAPer. That is interface. Then C stands for conversion. As sometime we need to post so many documents in the system, or maybe we are going to create 2000 vendors in the system in one go we want to create. If we ask our business or ask user to create the vendor or to post multiple invoices like thousands of invoices, then they will take so much of time. They will be investing weeks or maybe months to complete the activities. But if we have a upload program could be in Excel text CSV, then we will be preparing the data in Excel, and then with the help of that upload program, we will be uploading all the documents, or maybe we will be creating the vendors in one go. It will take only 5-10 minutes. Uploading will take only 1 minute, and then system will in the backend system will create vendors automatically. So conversion is very useful tool. And then we have two option apart from upload program, LSMW and BDC. LSMW can be created by functional consultant, and functional consultant create LSMW to post multiple documents in one go, or maybe to create multiple vendors in one go. So if you have anything which is in bulk, you can follow the process for LSMW, or you can take the help from ABAPer to create the upload program so that you can enter the data in Excel, and then you will run the transaction code to pick that data and then just execute it, and then system will take care automatically. So Got it. this is conversion. अच्छा, LSMW का मतलब क्या होता है? आई नो Leg, फॉर अपलोड, बट अगेन. legacy system migration ओह. workbench, something like that. हम्म. BDC, it is for technical, but recording for BDC, we will be doing the recording for BDC. We will be giving the recording to ABAPer, and then ABAPer will see everything is fine or not, and then ABAPer will create one transaction code for that BDC also. इंडिविजुअल अपलोड. Yeah, and BDC full form is batch data conversion, something like that. गॉट इट, गॉट इट. Okay, then we have E. E stands for enhancement. As we know, whenever we post vendor invoice, we will have different kind of screen. But on that screen, suppose GST number is not available, but business wants to see GST number also on the vendor invoice screen. Let me show you the vendor invoice screen. So this is vendor invoice screen where you post the vendor invoice, enter vendor invoice. So here you are not able to see any field which is for GST number. But if business says that I want to see GST number here, I want to see, then we will be taking the help from ABAPer to enhance this screen, and then we will have GST number here. So that is enhancement. Clear, Santosh and यस, Surinder? यस यस, सर। यस, And यस. and Surinder, is it possible for a functional consultant in SAP B1 to enhance any screen? यस सर। Okay. तो ABAPer की कोई जरूरत नहीं होती क्या इसमें सर B1? एक्चुअली ना हम इतने प्रोजेक्ट कर लेते हैं ना, जैसे 10-12 प्रोजेक्ट कर लेते हो तो हमें कोडिंग पता चल जाती है, तो कुछ कुछ फील्डें हम खुद ही लगा लेते हैं और कुछ विंडोज हम। नहीं नहीं, मतलब हम्म. आप इसमें नहीं लगा पाओगे SAP। हाँ, वो मेरे को कंफर्म करना था। हाँ, वही मेरे को हाँ नहीं डाउट नहीं, था। मतलब अगर जैसे आप 10-12 प्रोजेक्ट पे काम कर भी लोगे ना,
तब भी नहीं लगा पाओगे, बिकॉज खाली कोडिंग नहीं है वेपर के लिए, वो हम्म। पीछे पैकेज वैकेज और वो जो हाँ, मैं ट्रांसपोर्ट। समझ गया, जैसे हमारे यहाँ डीएलएल चलता है सर, जैसे। हाँ मतलब वो अलग अलग चीज होंगी। मैं समझ और गया। यहाँ पर आपको दिया ही नहीं जाएगा फील्ड ऐड करने के लिए, आपको ऑथराइजेशन ही नहीं होगा। ओके। ओके। अबैपर है, अबैपर काम है, तो अबैपर वाली आईडी पे ही एक्सेस दिया जाएगा मैं वो समझ वाला। गया आपकी बात, समझ गया। ठीक है तो तो। सर एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे हाँ अभी आपने जो पीछे वाली विंडो में बताया था डेटा डेटा अपलोड का, हाँ थर्ड पॉइंट था, तो हाँ। ये आप हमें बताएंगे ना कैसे डेटा अपलोड होता है बैकएंड से? LSMW आई विल बी टीचिंग यू। ओके। मतलब मैं इसका भी बता दूंगा प्रोग्राम का। हम्म। मैं कोई अपलोड प्रोग्राम मेरे पास होगा मैं बता दूंगा, बट इसको आप बनाते नहीं हो, आपको खाली एक्सेल में डेटा रखना है, इसको नहीं, एक्सेल में एक्चुअली वो। अभी हमारा भी ऐसा ही है, जैसे हम वीवर में जो हम डेटा अपलोड करते हैं ना बैकएंड से, हम्म। तो हमारे यहाँ एक डीटीडब्ल्यू की एक फंक्शनैलिटी चलती है, डाटा ट्रांसफर वर्कबेंच। अच्छा। तो उसके अंदर भी हम एक्सेल हो गया या टेक्स्ट हो गया, उसमें डेटा रेडी करते हैं और उसके थ्रू ही अपलोड करते हैं। हाँ। बरोबर। तो मुझे यही पूछना था कि आप इसकी थोड़ा आइडिया दोगे ना हमें बैकएंड से? LSMW तो पूरा बताऊंगा मैं, उसका ओके। आपको स्क्रीन भी दिखा देता हूँ एक। हम्म। LSMW रन करते हैं तो जैसे एक LSMW ये बना हुआ है कस्टमर क्रिएशन का। ओके। तो इसमें ना आपके पास ये 14 स्टेप्स होते हैं। ओके। तो ये सारे आपको रन करने होते हैं, तो उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। उससे पहले रन करने से पहले आपको आप रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्डिंग मतलब ऐसे रन सिमुलेटर एक तरीके से? मतलब कि आपको कौन कौन सी फील्ड को कैप्चर करना है, ताकि कौन कौन सी ओके। फील्ड को अपडेट करना है। ओके। जैसे जब मैं वेंडर की स्क्रीन खोलता हूँ हम्म। FD01, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे पहले अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करूंगा कि किस टाइप का मेरा वेंडर है। ओके। ठीक है, कोई भी अभी सेलेक्ट कर लेते हैं। वेंडर या कस्टमर? कुछ भी, कस्टमर, कुछ ओके। भी आपको बल्क में करना है, आपको एक स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, उसके लिए आप LSMW की हेल्प ले सकते हैं। कुछ भी वेंडर हो, कस्टमर हो, कॉस्ट सेंटर हो, GL हो, प्रॉफिट सेंटर हो, पोस्टिंग हो, एनीथिंग, एनीथिंग, ठीक है। कुछ भी। सर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, एक स्क्रीन हो गई कि एक फील्ड होगी, मुझे ये फील्ड सेलेक्ट करनी है। ओके। दूसरी फील्ड होगी कस्टमर का, कंपनी को डालूंगा मैं, फिर करूंगा मैं एंटर। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा, ये मेरी मैंडेटरी फील्ड है। फिर यहाँ पे मैं नाम दे दूंगा। ओके। फिर आता हूँ मैं कंट्रोल डेटा पे, मेरे को कोई कंट्रोल डेटा पे फील्ड चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं कुछ भी नहीं डाल रहा। फिर वो ओके। वाली स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक बट है। अभी कर्सर यहाँ पर आ गया वेंडर पे, हम्म। तो ये फील्ड रिकॉर्ड हो जाएगी, हम इसको वहाँ पे डिलीट कर लेंगे क्योंकि हमें इसको अपडेट करना नहीं है। फिर आते हैं हम सपोज कंपनी को डेटा पे, यहाँ पे रिकॉन अकाउंट डालना होता है, वो डालना पड़ेगा। ये मैंडेटरी फील्ड है। तो इस स्क्रीन पे ये वाली दो फील्ड मैंने रिकॉर्ड कर ली क्योंकि मैंने इन पे कुछ डेटा किया डाल है। दो। हाँ, डेटा ओके। डाल दिया या मेरा कर्सर आया था। ओके, तो कर्सर फिर भी आ जाएगा तो भी रिकॉर्ड है। कर्सर पे भी आगे सेव हो गया, पर हम उसको डिलीट कर सकते हैं वहां पे। फिर मैं सेव कर दूंगा, तो मेरी स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर मेरे पास यहाँ पर जो है रिकॉर्डिंग आ जाएगी। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कैसे होती है। तो ये सारी फील्ड रिकॉर्ड होती हैं, देखो उस कंपनी कोड करी उसने रिकॉर्ड, कस्टमर अकाउंट ग्रुप किया, टाइटल दिया, नेम वन दिया, कंट्री दी, लैंग्वेज दी, रिकंसिलेशन अकाउंट दिया, सॉर्ट की, जो जो फील्ड है उसको चाहिए थी कस्टमर क्रिएट करने के लिए, तो उसने रिकॉर्ड कर ली। ओके, ये बाकी तो अगर सर कोई हम ही डिफाइन कर रहे हैं ना कि हमें क्या क्या करना है? हमें 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 क्या क्या, बट आपको बिजनेस से समझना पड़ेगा कि उसको कौन कौन सी फील्ड चाहिए, हाँ, अगर वो मैं उसको। समझ गया, वो तो उसको जो डेटा वो हम उसको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट देंगे, उसके अंदर जो वो डेटा देगा उस हिसाब से हम उसको मॉडिफाई करेंगे। मतलब जो कस्टमर क्रिएट करने के लिए जो जो फील्ड चाहिए वो तो आपको करनी ही नहीं, करनी है। मैंडेट तो उसको देनी ही पड़ेगी कस्टमर को, जिससे हम मैंडेट डेटा। तो देनी ही पड़ेगी। हाँ। आप क्रिएट कर दो, जो भी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपके अब इन्फॉर्मेशन है मैंडेटरी फील्ड के साथ। बाद हम्म। में कुछ चेंजेस करना है, वो कस्टमर में अंदर जाके चेंज कर लेगा, आपके सर वो कस्टमर मैं तो। ये जो जैसे सपोज मैंने 200 कस्टमर या वेंडर जो भी अपलोड करे हम्म LSMW से, हम्म। उसके बाद सपोज वो कहता है कि ना हमारा ना इसके जो हमने टेलीफोन की एक वो दिए थे, तो वो मैंने उस टाइम दिया नहीं था डेटा आपको, हम्म मैंडेट फील्ड थी भी नहीं, ठीक है सर? हम्म। अब मेरे को वो अपडेट करना है, तो वो फिर अपडेट हो जाएगा? देखो अगर 200, सपोज 200 नहीं, हम सब डिस्कस करते हैं, 50,000 कस्टमर हैं हाँ, आपके। कुछ भी है। और अभी आपने वेंडर कस्टमर क्रिएट कर दिए, 50 के 50,000 क्रिएट हो गए। डन। बाद में बिजनेस आता है कि यार एक फील्ड मैंने देना भूल गया था, अब मैं आपको दे रहा हूँ, उन सभी 50,000 में अपडेट करो। अगर अपडेट आप कर दो। मैन्युअली जाके करोगे तो आपका फिर टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं, मेरे को वो करना ही नहीं ना, हाँ, तभी मैंने तो पूछा आपसे। हाँ, हाँ। तो फिर आपको एक और LSMW बना सकते हैं। अभी आपने बनाया क्रिएशन का, ओके। फिर आप कोई भी नाम देके जो भी टी कोड चलाते हो उसको चला के रिकॉर्डिंग कर लो खाली उसी फील्ड की। अच्छा, ठीक है। तो फिर सर ये मैं, जो टी कोड आपने जो दिया अभी, ए हाँ लगा के, हाँ, ये हम खुद लिख ये सकते हैं? ये नाम है, ये नाम है, टी कोड नहीं है, ये खाली नाम है। ये देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दिया,
ठीक है। सब प्रोजेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट दिया। तो ठीक ये है, आप नाम ऐसा देते हैं कि हमें समझ आ जाए कि इसमें हमने किया क्या है। मतलब ये हम खुद दे सकते हैं ना सर ये? हम ही ये तो देंगे, कुछ हाँ, पूरा हम ही देंगे। हाँ, ये और कुछ बैकएंड से कोई कोड तो नहीं है ना इनका ये? नहीं 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 नहीं, जैसे अभी आपने ट्रांजेक्शन को रन किया FD01 फॉर क्रिएशन फॉर कस्टमर, तो ठीक आपका कस्टमर क्रिएट हो गया, बट अब है। आपको खाली एक ही फील्ड चेंज करनी है। हाँ, तो आप पहले सबसे पहले सोचिए कि अगर मैं को एक ही कस्टमर के लिए करनी है तो मैं कैसे करूंगा। मैनुअल ट्रांजेक्शन कोड है FD02, ठीक है। उसमें आपने कस्टमर नंबर डाला कोई ओके, और एंटर कर दिया। ठीक फिर है, आप ये ले डायरेक्टली लिया। उसी फील्ड पे चले जाइए, सपोज आपको ये अपडेट करना है, हुँ, उसी फील्ड को रिकॉर्ड करिए खाली। तो आपको क्या होगा कि आपकी तीन फील्ड रिकॉर्ड होंगी। एक तो आपने बाहर कस्टमर नंबर डाला ठीक है, और कंपनी कोड, ओके। वो तो आपका कस्टमर आपके पास सारे हैं ही हैं जो क्रिएट है। हाँ, कंपनी कोड आपका फिक्स है, ठीक है। उन दोनों को डालिए। और साथ में थर्ड फील्ड आपकी रिकॉर्ड हुई कि ये कैश मैनेजमेंट ग्रुप की, इसको आपको ओके, डालना है एज पर बिजनेस जो उसने डेटा दिया। ओके, मैं समझ गया। फिर उसको अपलोड कर दोगे तो आपके उसी कस्टमर को ना ओपन करेगा और ये फील्ड ऐड करेगा और सेव कर देगा। हाँ, व एक ही कस्टमर को करेगा ना सर फिर? नहीं, 50,000 कस्टमर को, मतलब अगर आप मैनुअली करो तो एक एक करके करोगे। हाँ, अगर आप मैनुअली एल तो एस एम एक ही डब्ल्यू करेगा। कोई मैनुअली एक ही करेगा। 50,000 कस्टमर को अगर इकट्ठे करना है तो LSMW या हाँ, मतलब BTC। इसके अंदर पहले हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वो एलएसएमडब्ल्यू चलाना पड़ता है, ऐसा है? LSMW बनाने के लिए हमें रिकॉर्डिंग करनी बिल्कुल, पड़ती है। हाँ, मतलब समझ गया, पहले हाँ, रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है कि हमें क्या फ़ील्डें अपडेट करनी है, क्या ऐड करना है, दोनों को। एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। ओके, और उसके बाद भी जब आप ये सब बना लोगे तो ये हाँ, लास्ट में स्टेप आता है रन बैच इनपुट सेशन। ओके, इसके बाद क्या होता है कि ये एक बैच बन जाता है। ओके, आप इस जब तक आप पूरा एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो सिस्टम अपडेट नहीं करेगा, वो फील्ड या ओके, सिस्टम क्रिएट नहीं करेगा। आपको इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट ठीक करने है, पे ये अभी ये एग्जीक्यूटेड है, ये देखिए सक्सेसफुल है। हाँ, तो एग्जीक्यूट तो नहीं है, यहाँ पे जीरो है। तो कुछ ना कुछ इश्यू होगा तभी ये पूरा कंप्लीट मतलब नहीं हुआ। कुछ ना कुछ डेटा है उसको इनपुट नहीं मिला होगा तो उसकी वजह कुछ से भी, है। हाँ, हो सकता है कि कुछ हो। तो आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे, सिस्टम पूछेगा कि आपको फ्रंट एंड पे चलाना है या बैक एंड पे। ओके, अगर आप बैक एंड पे चलाओगे तो आप चला के फिर अपना जो मर्जी करो, अपना घूमो फिरो जो मर्जी हाँ, करो। वो तो सर हमारा भी बैकएंड पे ही चलता है, हम उसको हाँ मिनिमाइज़ करके छोड़ देते हैं, वो चलता रहता है डेटा। हाँ, अगर आप फ्रंट एंड पे चलाते हो तो आपको एंटर 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 बार बार प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी है, दोनों मतलब दोनों प्रोसेस सेम ही है, उसके अंदर भी ऐसे होता है, यहाँ पे भी है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है, आप चाहते हो कि ये चलता तो रहे, बट हाँ, अगर कहीं पे इशू आता है, हाँ, जैसे कोई एरर आ गया, आपने कोई गलत हाँ, इन्फॉर्मेशन दी, हाँ, जैसे आपको कंट्री फील्ड अपडेट करनी है, IN देनी चाहिए इंडिया के लिए, बिल्कुल, आपने IN की जगह 1N डाल दिया किसी ओके। कस्टमर के लिए। हाँ, हाँ, ठीक है, तो उस टाइम पे वो आपको एरर बता देगा कि इस कस्टमर में एरर दे रहा हूं मैं ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ओके, आपको उसी टाइम रोकेगा खाली जहां पे एरर होगा। अब ओके। उस एरर को ठीक करो, फिर दोबारा एंटर दबाओ, फिर दोबारा प्रोसेसिंग शुरू हो फिर जाएगी। वहीं से स्टार्ट हो जाएगी जो अगर सपोज़ कि अगर मैंने 50,000 दिए, 10,000 मेरे अपडेट हो गए हैं या क्रिएट हो हाँ। गए हैं, हम्म। 10,001 पे उसने एरर मारा, तो वो हाँ 10,001 पे प्रोसेस रोक देगा, अगर उसके बाद हाँ, उसको हम ठीक करेंगे तो वो 10,001 से स्टार्ट कर देगा। एग्जैक्टली। ओके, तो आपको अगर ऐसे भी देखना है तो तीन प्रोसेस है, बैक एंड, फ्रंट एंड, और फ्रंट एंड पे अगर आपको खाली एरर पे रोकना है ताकि ठीक आप उसी टाइम ठीक करो और आगे आगे चलो। ठीक है सर, फिर आप ये आगे आएँगे तब आप एक बारी प्रोसेस बताना इसकी कैसे। ये सब समझेंगे। ठीक है। बट फिर मैंने ठीक है। पूरा इसलिए डिजाइन किया हुआ है प्रोसेस, PPT एंड कोर्स की हमें क्या क्या चीजें किस टाइम पे करनी है। अच्छा, एलएसएम हम बाद में बात करें अपने जी, या बाद में वी हैव दैट कवर टू कवर लेटर, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड थिंग कि हम्म। हम बाद में उसके ऊपर आपका हाँ, पूरा बाद में ही कवर होगा ये सर। पूरा कंप्लीट, अभी मैंने खाली आपको ओवरव्यू दिया। ओवरव्यू दिया ओवरव्यू सर। से आपको समझ नहीं आएगा कि ओके। करना क्या है। मैं हुँ। आपको बना के दिखाऊंगा। हुँ। जैसे जब हम वेंडर का पार्ट करेंगे ओके, तो मैं आपको परफेक्ट वेंडर के लिए परफेक्ट बना के दिखाऊंगा, जब हम कस्टमर का परफेक्ट। पार्ट करेंगे तो कस्टमर। उससे आपको समझ आ जाएगा जब भी आपको कुछ बल्क में अपलोड करना है, चाहे वो वेंडर हो, कस्टमर हो, GL हो, कॉस्ट सेंटर हो, प्रॉफिट सेंटर हो, चाहे वेंडर की पोस्टिंग हो, कस्टमर की पोस्टिंग हो, तो हुँ। वो चीजें आप LSMW के थ्रू कर सकते हैं। बट सभी फैंटास्टिक। केसेस में नहीं, कई केसेस में LSMW में कॉम्प्लिकेशन आते हैं। बट 90% केसेस में आप अपना काम आसान कर सकते हैं LSMW के थ्रू। लेकिन अगर मेरे पास है कि मेरे पास कोई कस्टमर है इंडिया का है, कुछ हाँ कस्टमर यूएस का है, कुछ हाँ कस्टमर न्यूजीलैंड का है, हाँ कंट्री कोड आईएन रहेगा, एनजेड रहेगा, ये सब हाँ रहेगा, राइट? हाँ हाँ। हुँ। तो मैं वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग करूंगा, हम्म। यहाँ पे एक्सेल फाइल में मेरा मल्टीपल वेरिएबल्स रहेगा। आप हुँ। रिकॉर्डिंग करिए खाली, जोन सी फील्ड आपको अपडेट करनी है। आपका सपोज एक कस्टमर ये है हाँ, और एक कस्टमर ये है, एक कस्टमर ये है, एंड सपोज हमारे पास ये हो गए 60-70 हजार रिकॉर्ड हो गए। बराबर। ये आपका इंडिया का है, ये आपका US का है, ये आपका स्पेन का है, ये आपका हो गया न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, साउथ कुछ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका, सऊदी, जो भी है। अब आपको ये वाली फील्ड अपडेट करनी है, क्योंकि आप जब क्रिएट कर रहे थे तो भूल गए थे।
बराबर। तो आप फील्ड को रिकॉर्ड करिए जिस फील्ड में आपको कंट्री डालनी है। कौन सी हाँ कंट्री डालनी है वो आपकी एक्सेल बताएगी। जब आप हाँ। अपलोड करोगे एक्सेल LSMW में, तो वो ये वाला कस्टमर खोलेगी, इन कंट्री में IN डालेगी और सेव कर देगी। ये वाला सर एक कस्टमर चीज, ओपन। हम्म। हाँ, एक चीज और पूछनी थी, जैसे ये जो आप बता रहे हो एक्सेल का, इसके हाँ। अंदर क्या स्टैंडर्ड टेम्पलेट नहीं नहीं हमारे नहीं, को? हाँ हाँ, हम बताइए। बनाते हैं जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो रिकॉर्डिंग ही टेम्पलेट बनती है। हम्म। मतलब वो बैकएंड में हमारे को क्रिएट करके दे देगा, उसमें फिर हमें डेटा फिल करना है और फिर उसके बाद वो वो प्रोसेस को रन करना है। वो अपलोड बैक कर देना है। हाँ, वो बैकएंड में क्रिएट करके देगा। यहाँ पे मैं दिखाया तो हूँ जैसे हाँ इस जो ये हाँ, कस्टमर इसी जो का के बना फील्ड हुआ है। हम हाँ, जो फील्ड हम वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं उसी फील्ड के हिसाब में एक्सेल फाइल सर हाँ ऐड। हाँ कैसे होगा, एक बार वैसे ही दिखा देना हाँ, ओवरव्यू मैं बस। वैसे दिखाता हूँ जैसे ये किसी ने हाँ कस्टमर क्रिएशन का रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। और हाँ यहाँ हाँ। पे मुझे दिख रहा है कि उसने ये वाली फील्ड ली है। एक सेकेंड। ये क्या उसने आपका ये वाली प्रोडक्शन का, ये क्या आपका प्रोडक्शन का सिस्टम है या टेस्ट ये का? ये टेस्ट सिस्टम है। ओके 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 ओके। ठीक है। हम्म, प्रोडक्शन में भी दिखा दूंगा जोन से क्लाइंट का मेरे पास उस टाइम पे एक्सेस होगा। ठीक है ठीक सर। है, ये मैंने बताया कि ये वाली उसने स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी। यहाँ पे जाते हैं ऑब्जेक्ट ओवरव्यू पे, ओके। टेबल। यहाँ पे देखिए ये आ गई टेबल्स की कौन कौन सी फील्ड उसने रिकॉर्ड करी है। तो ये मेरे बराबर। को चाहिए होती है मेनली दीज 4 थिंग्स। मैं वैसे दो, कोई भी चीज ऐसी नहीं चाहिए होती ना। हमें बस एक्सेल में देखना है कि कौन सी फील्ड। आप इसको ट्रांसपोज करिए। वेट, कॉपी नहीं हुआ। बस सर यहीं से कंट्रोल सी कंट्रोल भी करना है सर हमें? हाँ हाँ, आपने मतलब ये यहाँ पे। खुद क्रिएट करके नहीं देता डेटा कि पीछे हमें पीछे जैसे हेडर। अभी क्या होता है कि जब हम उसके अंदर हम डेटा अपलोड करते हैं ना, हाँ, तो सिस्टम ने ना स्टैंडर्ड टेम्पलेट दे रखी है। मतलब हेडर लेवल पे वो देता है नाम, जैसे जो टाइटल्स वगैरह जो होते हैं हमारे, कि कंपनी कोड हो गया, जैसे ये सब कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा हमें यहाँ। यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, आपको पता चल गया ये वाली फील्ड जो है मेरी कंपनी कोड की है। ये LSMW का बता रहा हूँ। एक और हम्म। फंक्शनैलिटी होती है जिसमें स्टैंडर्ड टेम्पलेट मिलता है, उसको हाँ। हम कहते हैं LTMC। ओके। हाँ। वो खाली S/4HANA में है, वो ECC में नहीं है। ओके। बट ओके। मोस्टली पीपल विल बी यूजिंग LSMW S/4HANA में भी, अच्छा। हम्म। क्योंकि LTMC में बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं क्रिएट करने में। जितना टाइम उसको LTMC बनाने में अपलोड करने में लगता है, उस मतलब उतने में अगर वो मैनुअली करे या LSMW के थ्रू करे तो उसका आधा टाइम बच जाता है। अच्छा। ओके। LTMC थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और अभी उतना स्ट्रीमलाइन नहीं हुआ क्योंकि S/4HANA में आया। LSMW ECC में भी था और S/4HANA में भी है। ओके। सपोज यहाँ पे आपने कंपनी कोड डाला, यहाँ पे कस्टमर ग्रुप डाला, जेड डोम, फिर टाइटल डाल दिया कि हाँ कंपनी है, फिर नेम डाल दिया, फिर कंट्री डाल दी, लैंग्वेज डाल दी, रिकॉन अकाउंट डाल दिया, एंड सोर्ट की डाल दी। ऐसे आप जो है सपोज आपके पास है कस्टमर 40-50 हज़ार कस्टमर, आप सबको बस डेटा डाल दो। आप इसको सेलेक्ट करो एक TXT फॉर्मेट में। ये TXT फॉर्मेट है जैसे हमने एक कंपनी कोड के लिए बनाया था। तो ऐसे डाला और इसको सेव करा। और इस फाइल को जो है हम LSMW में, यहाँ वाला स्टेप होता है स्पेसिफाई फाइल। तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। This will save a lot of step, lot of lot of effort it will save you, like that. and it उसके will बाद also cross verify the fields. For example, if if in the account setup, I mean, the customer belongs to India, we have put हम्म something like US, right? हम्म। So the system should automatically give a error message. एरर एरर। That's a cross validation also. बट अगर उस फील्ड में उसको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, अगर आपने हाँ US डाल दिया तो उसको नहीं लगता कि आपने गलत किया, उसको लगा कि आपने US का वेंडर कस्टमर क्रिएट किया है। हाँ अगर आपके पास बिजनेस में ये सिनेरियो है कि आपके सारे कस्टमर इंडिया के होंगे, तो आप पहले वैलिडेशन लगा सकते हैं कि मेरे को हाँ। इस फील्ड में वैलिडेशन लगानी है ओ। कि ये वाली फील्ड जो है मेरी, जो एड्रेस की ये वाली IN ही होनी चाहिए। हम्म। तो हाँ अगर तो आप US डालोगे तो वो एरर दे देगा कि भैया आप US डाल रहे हो और आपने वैलिडेशन लगाई है कि ये इंडिया की होनी चाहिए। वैलिडेशन भी एक प्रोसेस है। किसी भी फील्ड को, किसी भी मतलब स्क्रीन पे आप वैलिडेशन लगा सकते हैं कि अगर मेरे को यहाँ पे IN चाहिए तो आप US डालोगे तो वो एरर दे देगा। इसे कहते हैं वैलिडेशन SAP में। ये भी एक टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक होता है सब्स्टिट्यूशन। अगर आप चाहते हैं कि यूजर US डाले या UK डाले, मेरे पास IN आना चाहिए ऑटोमेटिक। तो यूजर US डालेगा, UK डालेगा, कुछ भी डालेगा, आपका सेव IN ही होगा। उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन SAP में। ये भी एक दो टॉपिक हैं जो थोड़े से टेक्निकल हैं बट फंक्शनल कंसल्टेंट करता है। गॉट इट गॉट इट, ये हम तो कवर करें डिटेल में। हाँ हाँ,
सब डिटेल में कवर करेंगे। सुपर, वेरी नाइस। ये यही चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि हाँ मैं हाँ बहुत सारे चैलेंज होता है ऑपरेशंस में, ये सब हाँ हाँ मैनुअल प्रोसेस होता है। सेकंड हमारा ये वैलिडेशन नहीं रहता, बहुत सारा हाँ। एरर होता है। वैलिडेशन तो मतलब कॉमन है वैसे, देखो ओबी 22 में हमने एक कंपनी कोड के लिए लगाई भी है टेस्ट सिस्टम में, एक बैच को मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे इस कंपनी कोड के लिए हमने वैलिडेशन लगाई हेडर पे। वन हम्म मीन्स हेडर, टू मीन्स लाइन आइटम। वो भी मैं आपको बताऊंगा हेडर क्या होता है, लाइन आइटम क्या होता है और कंप्लीशन क्या होता है। अभी हमने हेडर पे वैलिडेशन लगाई यहाँ पे। यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाई, देखो एक ये वैलिडेशन है, हमने कहा कि टैक्स फील्ड इज मैंडेटरी। हम्म अगर आप वेंडर इनवॉइस पोस्ट कर रहे हो, वेंडर इनवॉइस का हम्म डॉक्यूमेंट टाइप होता है केआर, अगर और इस कंपनी के लिए कर रहे हो, तो मेरे को टैक्स फील्ड मैंडेटरी चाहिए कि यूजर को एंटर करना ही करना है, चाहे वो गलत गॉट करे। इट, गॉट इट। ठीक है, एक वैलिडेशन हमने लगाई यहाँ पे, पोस्टिंग डेट जो है डॉक्यूमेंट डेट से बड़ी होनी चाहिए। हम्म ठीक। ऐसा नहीं है कि पोस्टिंग डेट मैं कल के ले रहा हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट इनवॉइस तो आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पोस्टिंग डेट शुड बी ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट। ये भी हमने लगाई, तभी आप देखोगे इस वाले सिस्टम में मैं जब FB60 करता हूँ, तो मैंने वेंडर लिया, मैं ये डॉक इनवॉइस डेट सेम डेट लेता हूँ, और यहाँ पे रेफरेंस फील्ड लेता हूँ, ये मेरे को एरर देगा कि रेफरेंस फील्ड जो है शुड बी ब्लैंक। हमने क्योंकि एक वैलिडेशन लगा रखी है, रेफरेंस फील्ड शुड बी ब्लैंक। मैं नहीं चाहता यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन डाले। गॉट इट। और देखो पोस्टिंग डेट शुड बी ग्रेटर देन डॉक्यूमेंट डेट, ये भी हमने वैलिडेशन लगाई जो मैंने आपको दिखाई भी। ये फंक्शनल कंसल्टेंट ही कर सकता है, फंक्शनल कंसल्टेंट कर ये सकता, एंड करता ही यूजर फंक्शनल नहीं कर कर दे। सकता। एंड यूजर खाली मैं कहूंगा कि डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, वो पोस्टिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, उनको कोई इश्यूज आते हैं, वो बताते हैं गॉट इट। सीटीएम डिस्कस करता है फंक्शनल कंसल्टेंट से। अच्छा, और एक अगर बात, तो जो LSMW जो है, ये हम्म, क्या एंड यूजर कर सकता है? कर सकता है, मतलब अगर उसको पता है कैसे करते हैं कर सकता है। एक्सेस वगैरह, लेकिन एक्सेस होना LSMW चाहिए, का एक्सेस एक्सेस होना है? चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कर सकता टी कोड का एक्सेस होना चाहिए। है। टी कोड का एक्सेस होना चाहिए। नहीं है देखो तो फिर हम SAP जो अपना सपोर्ट फंक्शन उनको बोलेंगे तो एक्सेस दे देंगे वो। हाँ हाँ, पहले उसको समझा दो कि LSMW क्या होता है, कैसे करना है, उसको पूरा इन एंड आउट बता दो, एक्सेस दे दो, वो कर लेगा। ऐसा बराबर। कुछ नहीं, क्योंकि LSMW में आप वो यूजर वही काम कर पाएगा जो उसको फर्दर एक्सेस होंगे। LSMW पहला एक्सेस, देखो मैं आपको, वो भी थोड़ा हम्म टेक्निकल है, बेसिस कंसल्टेंट का काम है। पहले आपको यूजर को सपोज आपको देना है कि उसको LSMW का एक्सेस चाहिए, LSMW या को आपने एक्सेस दे दिया, या यहाँ पे एक्सेस मिल गया। या नाउ आप कह रहे हो कि उसको कस्टमर क्रिएट करने हैं, जो आप वो LSMW के थ्रू करेगा, हम्म और उसको फिर एक्सेस चाहिए FD01 का भी, हम्म तभी वो कस्टमर क्रिएट कर पाएगा थ्रू सही LSMW। बात है, अगर सही आप कह बात रहे है। हो कि उसको वेंडर क्रिएट करने हैं LSMW के थ्रू, तो LSMW का एक्सेस तो चाहिए, फिर वेंडर क्रिएशन का भी चाहिए। आपको 01 चाहिए। तो या LSMW में जाके जिस चीज का काम कर रहे हैं उसका भी एक्सेस चाहिए। गॉट इट, गॉट इट। और अब इसमें भी आता है फर्दर, यहाँ पे मैंने कह दिया कि FD01 का एक्सेस ये है क्रिएशन का। हाँ अगर LSMW में जाके वो कहता है कि मेरे को कस्टमर में जाके कुछ चेंज ही करना है जो अपडेट एफडी क्रिएटेड है, जीरो टू का FD02 का एक्सेस भी चाहिए। अपडेशन के लिए रहता है ना सर, FD02। हाँ हाँ, ओके। ठीक है। बट ये ट्रांजैक्शन कोड आपको S/4HANA में नहीं मिलेंगे, ये चले गए। अच्छा। उसके लिए एक ही ट्रांजैक्शन कोड आ गया, BP, अच्छा, बिजनेस पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। जैसे हमारे यहाँ पे भी यही चलता है सर, बिजनेस हाँ, पार्टनर। FK01, FD01, ये सारे ट्रांजैक्शन कोड S/4HANA में ऑब्सोलीट हैं। ओके। ओह, देन इट इज ओनली BP, दैट्स इट। BP देन वहाँ पे आपका अकाउंट, नेचर ऑफ द अकाउंट, GL अकाउंट सेलेक्ट करोगे, इधर डेबिट और क्रेडिट। इफ इट नहीं इज नहीं नहीं, डेबिट इट कुछ विल कुछ बी। नहीं, नेचर ग्रुप, ये एक सेकंड, ये जो आप क्रिएट कर रहे हो मास्टर क्रिएट कर रहे हो, तो आपको इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई लॉजिक नहीं कोई है। लेना देना ही नहीं है इसमें तो। लेकिन आपने लेकिन अगर आप लोग कस्टमर केयर के लिए BP, वेंडर के लिए BP टी कोड यस है, यस यस। हम्म, लेकिन सिस्टम में कैसे पता चलेगा कि ये कस्टमर है और ये वेंडर है? ये वो तो मैं बताता नेचर ऑफ द अकाउंट आपको तो सिलेक्ट करना हूँ, हाँ पड़ेगा ना। वो मैं बताता हूँ, मैं S/4HANA ओपन करता हूँ। ये S/4HANA ओपन किया हमने, हाँ, एक हमने BP बनाया था अभी पिछले हफ्ते, सपोज यही था शायद, हाँ, अमीगो प्राइवेट लिमिटेड। अभी आपको लग रहा है ये BP है, बराबर BP है क्योंकि आपको पता नहीं वेंडर है कस्टमर है। बराबर। मैंने एंटर किया। यहाँ पर हमारे पास रोल आ जाते हैं। हाँ। पहला रोल है जनरल रोल, जो होता है मेरे एड्रेस से रिलेटेड, कि मेरा कंपनी का एड्रेस क्या है, नाम क्या है, ये क्या है। हम्म, फिर आता है दूसरा रोल कंपनी कोड का रोल, कि मेरा ये किस कंपनी कोड के लिए है, और कंपनी कोड का डेटा जो मैं अपडेट करूंगा। तो यहाँ पे देखिए बड़े सारे रोल हैं, अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया कौन से वाला मेरा है, क्योंकि ये टेस्ट सिस्टम है, यहाँ पे ऐसे ही रहता है, बट रियल टाइम में आपको दो तीन ही दिखते हैं। अब बराबर। इसमें मैंने जो हमने क्रिएट किया था वो था IM1, कंपनी कोड डेटा। अब जो ये FLV लिखा है, VN, ये है वेंडर। आपने इसको सेलेक्ट किया,
आपके पास कंपनी कोड का टैब आ गया, अपने कंपनी कोड में देखा, हाँ यहाँ पे डेटा मेरा अपडेट है, रिकंसिलेशन अपडेट है। तो ये मेरा जो है वेंडर है, मास्टर है, ये मेरा वेंडर है बीपी, ये मेरा बीपी जो है वेंडर है। इसमें आप देख लीजिए लोकल वेंडर इकोन अकाउंट। अगर मैं इसको दूसरे रोल के लिए चेक करता हूँ, सपोज मैंने कस्टमर का बनाया हुआ IM1 कस्टमर CC, मैं वैसे डिस्क्रिप्शन नाउ में इट इज दे टैग्ड इन दिया। द अब बैलेंस शीट। अब देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये मैंने इसको क्रिएट अपडेट ही नहीं किया कस्टमर के लिए। तो वो मेरा बीपी जो था वो वेंडर था। दैट इज हाउ इट विल बी टैग्ड इन द बैलेंस शीट। हाँ ठीक है। ओके, सो अंडरस्टूड। तो तो सर इस इसको अगर हम डिस्क्रिप्शन में ही डिफाइन कर दे, अगर हम, हाँ देखो यहाँ पे तो देखो हमने डिस्क्रिप्शन में कर दिया हाँ, तो ये भी हमारे लिए आसान रहेगा ना। ये आसान रहेगा डिस्क्रिप्शन में ये, हम्म। क्योंकि उस टाइम पे हम इतने सारे रोल थे ना, तो हम कंफ्यूज इतने हो गए सारे थे रोल तो है कि अगर अभी हम स्टार्टिंग के लिए अगर हम इसको डिस्क्रिप्शन पे असाइन कर दे, उसके बाद इसके जो भी रोल होंगे बाकी हम धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएंगे कि। देखो आपका जो रियल टाइम प्रोजेक्ट होगा ना, आपके इतने सारे रोल होंगे ही नहीं, आप सारे रोल को डिलीट कर दोगे अगर जो भी एक्स्ट्रा हम्म, है। पहली बात तो एक्स्ट्रा होंगे नहीं, कोई टेस्ट तो कर नहीं रहा वहाँ तो रियल नहीं टाइम नहीं प्रोजेक्ट नहीं, है। एक्स्ट्रा नहीं होगा, हाँ जी। तो यहाँ पे रियल टाइम होगा तो आपको 4-5 ही दिखेंगे जो SCP ने दिए हुए हैं। हम्म। उसके बाद उसको कॉपी करके जो आप क्रिएट करोगे वो दिखेगा। तो ओके। आपको कन्फ्यूजन होगी नहीं रियल टाइम में। बट मैंने इसलिए बताया कि अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो रही है, आप रोल सेलेक्ट करिए, आप आके देखिए कि आपका डेटा यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने उसको उसके लिए क्रिएट किया है। तो यहाँ पे वेंडर आ गया, तो आपने हम्म। वेंडर के लिए इसको क्रिएट किया है। ये देखिए सप्लायर है, अब देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए सप्लायर आ गया। हम्म। सप्लायर मीन्स वेंडर, कस्टमर की वेंडर हो फील्ड गया हाँ, ब्लैंक, मतलब, हाँ, सही बिल्कुल। बात है। या समझ कस्टमर की गया। फील्ड ब्लैंक है। अब हम एक कस्टमर देखते हैं, हम्म। कस्टमर शायद अच्छा, कस्टमर बता रहे नहीं हैं कि तूने जब बता रहे हैं कि ये जो पहले हम लोग जो था FBL1N, राइट, टू क्रिएट नो द नो एक वेंडर सेकेंड, क्रेडेंशियल्स। वो था FK01 ये वाली फील्ड थी। एक सेकंड शायद लॉग आउट हो गया, मैं दोबारा लॉग इन करता हूँ ECC पे। लेकिन FBL01 is also to create the vendor, no? नहीं नहीं FBL01N नहीं, एक सेकंड, FBL1N। नहीं नहीं वो रिपोर्ट है। वेंडर क्रिएशन के लिए ट्रांजैक्शन कोड है FD01 ECC। हो गया ना। एफ हाँ, के वो जीरो वन है रिपोर्टिंग। वेंडर क्रिएट करने के लिए, क्रिएट वेंडर। हाँ, अब आप जो बोल रहे हो FBL1N, जैसे रिपोर्टिंग मतलब क्या क्या क्रिएट किया वो सारे सारे आ जाएगा इसमें, ऑल द फील्ड्स। नहीं नहीं नहीं, इसमें वो नहीं आता। इसमें आता है कि आपने उस वेंडर में क्या क्या पोस्टिंग कर रखी है, कौन क्या कौन सी क्या ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन लेवल पे आएगा ना सर। हाँ क्या क्या एंट्री हो रखी है आप देखते हैं इसमें। देखिए देखिए मेरे पास एक ये वेंडर है 101, इसमें ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो रखे हैं, उसका क्या अमाउंट है, ये है आपकी वेंडर की लाइन आइटम रिपोर्ट की आपने कितनी पोस्टिंग कर रखी है और कितना हमें उसे पे करना है। सर एक तरीके से लेजर ही हो गया ना। वेंडर का लेजर, हाँ, ठीक है। ठीक है। हम्म। और FK01 क्रिएशन ऑफ वेंडर, FD01 इज क्रिएशन फॉर कस्टमर इन ECC, और हाना में जो है BP ट्रांजैक्शन कोड है, वो हम समझेंगे जब हम अकाउंट्स पेबल करेक्ट। स्टार्ट करेंगे। अच्छा, और एक बात है सर, हम्म मुझे जस्ट अ वेरी अर्ली क्वेश्चन दिस, बट हम्म आई जस्ट वांटेड टू गेट ए क्लैरिटी। हम्म सी मुझे ना क्या चाहिए, मुझे तो पहले तो वेंडर क्रिएशन, हम लोग जितना सारे फील्ड में वेंडर क्रिएशन में डालते हैं, राइट, हम्म, देयर इज अ BPT कोड नाउ। सो हाँ मुझे चाहिए कि एक रिपोर्टिंग टी कोड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज मेरा टीम कितना सारे वेंडर उसमें प्रोसेस किए हुए हैं, राइट, सो आई वांट दैट वन टी कोड व्हिच कैन एक्सट्रैक्ट ऑल द वेंडर्स दैट इज क्रिएटेड टुडे। तो आपके इनवॉइस। पास आपके पास ऑथराइजेशन अच्छे लेवल पे होगा, अगर आप ये सब चीजें मांग रहे हो तो। हाँ, होगा, अगर नहीं होगा तो मैं कस्टमर से ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कस्टमर से ले लोगे तो आपको खाली एक्सेस लेना है एस सी यस। सिक्सटीन एन का, SC। SE16N। हाँ एस तो। ई सिक्सटीन एन पे आपने एक्सेस ले लिया, आप इसको हाँ। रन करिए। हाँ। वेंडर की रिपोर्ट्स, जो मास्टर की रिपोर्ट जो आप मांग रहे हो कि आज कितने वेंडर क्रिएट हुए, किसने क्रिएट करे, क्या नंबर आए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डाली, उसके लिए दो टेबल होती हैं इस ट्रांजैक्शन कोड के अंदर। LFA1, ये होती है वेंडर की जनरल रिपोर्ट, मतलब जहाँ पे एड्रेस रिलेटेड आएगा ना, वेंडर का नाम वाम आएगा और वेंडर का नंबर आएगा। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आ गया कि ये मेरा वेंडर नंबर है, इसकी सीट कंट्री ये है, ये नेम है, ये सिटी है ये पोस्टल कोड है। ये सारी चीजें आपके उसके में मिल जाएंगी, और किसने क्रिएट किया वो भी मिल जाएगा, क्रिएटेड ऑन, क्रिएटेड बाय। वेरी गुड। ये हो गया LFA1। अगर आप देखते हैं LFB1 तो आपको वेंडर का कंपनी कोड डेटा भी दिख जाएगा। उसमें आपको वेंडर का नंबर, कंपनी कोड, कौन सी कंपनी कोड में है, कब क्रिएट हुआ, किसने क्रिएट किया, क्या रिकॉन अकाउंट है, क्या सॉर्ट की है, क्या ओके। पेमेंट टर्म है, क्या प्लानिंग ग्रुप है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो सर और ये आप बिना एक्सेस के हम नहीं देख सकते हैं इसमें S4 में। मतलब एस
मतलब मुझे नहीं पता एसएपी बी1 में। एस हम्म। फोर एना में ईसीसी में विदाउट एक्सेस आप कुछ नहीं कर सकते। ओके। हम्म। अगर आप एपी, अगर आप जैसे यूजर हैं, एंड यूजर हैं, आप हाँ। एपी यूजर हैं, तो आपको ओके। मोस्टली एपी एक्टिविटीज का ही एक्सेस दिया जाएगा, जैसे कि FB60, FB65, F-53, वो 5-7 ट्रांजेक्शन कोड का मतलब लिमिटेशंस राइट्स ही रहेंगे इसके अंदर जो भी। लिमिटेशन रहते हैं एंड यूजर के लिए। फंक्शनल ओके। कंसल्टेंट के लिए ऑलमोस्ट ऑल एक्सेस रहता है। वो तो उसे ओपन कहते हैं, रहते हैं ना सर उसके लिए तो, हाँ। नहीं जरूरी नहीं है, कई कंपनियां उसमें भी वो करती हैं, बड़ी कंपनीज होती है उसमें भी रोक लेती हैं कि हमें एसएपी ऑल देना ही नहीं है। आप अगर फाइनेंस के हो तो आप हम्म। फाइनेंस की एक्टिविटी करोगे, आप एसडीएमएम की एक्टिविटी चेक भी नहीं कर सकते हो। हाँ हाँ, अगर वो नहीं आपको वो बोल। करवानी है तो हम्म। आपको एसडीएमएम कंसल्टेंट से कनेक्ट करके उनसे समझ के हाँ। उनको बोलना होगा ये कर दो। ओके, ठीक है, ठीक नहीं, वो तो मैं समझ गया सर, अगर हमें हाँ दूसरे मॉड्यूल में जाना है फिर तो उसके लिए तो हमें चाहिए प्रॉपर। हाँ, वैसे प्रॉपर चाहिए, बट जैसे कई प्रोजेक्ट छोटे होते हैं, जैसे मैं जब मैं पहले प्रोजेक्ट पे था वो था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अपने हम्म। दिल्ली हम्म। में जो है ये। ओके। तो सफदरजंग एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे मेरे पास एसएपी ऑल का एक्सेस था, मैं बेसिस का काम भी करता था। ओके। मेरे को अब तो ट्रांजैक्शन कोड भी ढंग से याद नहीं है। ऑथराइजेशन देने के लिए और रोल बनाने के लिए PFCG करके शायद ट्रांजैक्शन कोड था, हाँ यही है। तो यहाँ पे हम उस रोल के अंदर, जैसे अगर मैंने आपको नए आप आए हो नई कंपनी में, मुझे हम्म। आपको उस रोल का एक्सेस देना है, तो इस रोल में जाके मुझे बेसिस ओ- वाली एक्टिविटी करते थे, तो आपको उस रोल का एक्सेस हो जाता था। उस रोल में मेरे 10 ट्रांजैक्शन कोड हैं, तो आप ओ- वो 10 ट्रांजैक्शन कोड ही एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता सिस्टम में। नहीं, आपको हमेशा इशू एरर आएगा कि आपके पास ये एक्सेस नहीं है। हाँ, रोल नहीं है, रोल डिफाइन नहीं है, ये होगा ना। ऑथराइजेशन इशू ओके। बताएगा, जैसे कुछ भी। अभी मतलब इसमें तो मेरे पास एसएपी ऑल है, ओके। तो ये तो टेस्ट सिस्टम है। तो ये रहता है, मतलब आप हम्म। फंक्शनल तो फंक्शनल की एक्टिविटीज का काम हम्म। हो एक्सेस होगा। प्रोडक्शन में तो आपको एक्सेस मिलेगा ही नहीं। बड़े बड़े ओके। क्लाइंट पे, छोटे क्लाइंट पे हम्म। मिल जाता है। बड़े क्लाइंट में हम्म। अगर आप प्रोडक्शन में जाके काम करना है, काम नहीं करना मतलब खाली चेक करना है देखना ही है मतलब कि क्या इशू आया यूजर को ये वो, तो उसको आपको एक दूसरे प्रोसेस के थ्रू जाना होता है, जिसमें हम्म। सारी ट्रैकिंग होती है कि आपने कौन कौन सा टी कोड रन किया, क्या हम्म। क्या स्टेप एग्जीक्यूट किया, सब कुछ ट्रैक होता है। बराबर वो बराबर। बड़ी कंपनीज में चलता है, छोटी तो कंपनी सर में नहीं इसके चलता। अंदर अगर जैसे जैसे आप कह रहे हो कि रोल डिफाइन है कि अगर हम्म। मुझे पीपी या एमएम में जाना है, कहीं जाना है, तो सामने वाला मुझे खाली व्यू राइट्स भी दे सकता है इसके अंदर, ऐसा भी है? व्यू व्यू राइट भी दे सकता है, जैसे कि सपोज अभी यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि FK01, FK02, हम्म। FK03, ये हम्म। हो गया क्रिएट, ये हो गया चेंज, अपडेट, हाँ ये वही। हो गया डिस्प्ले। ठीक है, ठीक है। तो आपको 3 ट्रांजेक्शन कोड का एक्सेस मिलेगा यहाँ पर। ओके। ठीक है। अगर आपको 2 का है तो आप चेंज और क्रिएट कर पाओगे। तो सर डिस्प्ले ये का, तो ईसीसी में चल रहा है ना, अब तो उसके S4 में तो बीपी आ गया, तो बीपी में कैसे देंगे? मैं बता रहा हूँ, वही बताने जा रहा था मैं, मुझे हाँ। पता था आप वही पूछोगे। तो हम्म। इसलिए मैंने मेंशन ही पहले BCC वाला है। तो आपको ये 3 ठीक। ट्रांजेक्शन कोड का एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। इसको हटाते हैं, अब आपके पास एक्सेस होगा खाली बीपी का। ठीक अब है। आपके पास क्रिएट का एक्सेस है, डन। चेंज का एक्सेस है, डिस्प्ले का एक्सेस नहीं है। आप चाहते हो डिस्प्ले का एक्सपी एक्सेस मुझे चाहिए। हम्म। क्रिएट का एक्सेस कैसे आएगा? रोल के अंदर ना जब हम टी कोड मेंशन करते हैं उसके बाद आता है एक्टिविटी। इसको अच्छा, कहते हैं 01 एक्टिविटी, इसको कहते हैं जीरो, मतलब कुछ भी और भी हो सकती है मैं जो समझ गया, हाँ, जो भी होगा एक्स वाई जेड, ठीक है। नॉर्मली जो भी होगा। तो मैं आपको बीपी ट्रांजैक्शन कोड के साथ इन तीनों एक्टिविटी का एक्सेस दूंगा, 01, 02, 03। हम्म। उस रोल के अंदर अगर ओके। मैंने 3 का नहीं दिया तो ओके। आप डिस्प्ले नहीं कर पाओगे, बट वैसे खाली डिस्प्ले बना सबके के बनाना और चेंज कर सकता हूँ मैं। वैसे डिस्प्ले सबके पास होता है, बट चेंज और क्रिएट सबके पास नहीं होता। तो नहीं सपोज होता, आपके पास ठीक है। डिस्प्ले है, तो ठीक आप है। चेंज और क्रिएट तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक्टिविटी का एक्सेस नहीं है उस अच्छी से नहीं है। ट्रांजैक्शन कोड का। तो सर इसके लिए जैसे ये जो आपने बताया है, इसके अगर हम्म। हम डेटा अपलोड कर रहे हैं, तो हम्म। उसके लिए भी ये एक्टिविटी हमारे पास होनी चाहिए ना, क्रिएट हाँ चेंज। हाँ, हुँ। जब भी LSMW पहला ट्रांजैक्शन कोड, उसके बाद जो आप काम कर रहे हो उसका हाँ, एक्सेस होना चाहिए। बीपी के अंदर हाँ, अगर आप चेंज करने जा रहे हो तो तो जीरो चेंज टू एक्टिविटी का जो एक्सेस टू होना चाहिए। एक्टिवेट का, ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है। ठीक है सर। हम्म। तो ठीक ये है। भी बताओगे ना सर अब आप हमें? नहीं नहीं नहीं, ये आखिरी। टेक्निकल है, ये टेक्निकल है। मैंने जितना आपको बता दिया उतने में आपका ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं फिर भी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ क्योंकि स्क्रीन ओपन है, बट ये टेक्निकल है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। हुँ। यहाँ पे देखते हैं कोई रोल बना हुआ है, क्योंकि ये सब सिस्टम वाइज बने हुए हैं। हम्म। ये सब पुणे, हम जितना सारा काम करते हैं ना, हम्म। सबका रिपोर्टिंग का टी कोड है हमारे पास, राइट? सबका सबका सबका, एक दिन में कितना कस्टमर क्रिएट हुआ, कितना इनवॉइस पोस्ट हुआ, कितना पेमेंट रन हुआ, कितना जेएल प्रोसेस हुआ, कितना सब एंट्री सब प्रोसेस हुआ। सब 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 आप मुझे थोड़ा कुछ, मदद करोगे उसके ऊपर? सब कुछ मैं अब जैसे जैसे आपको समझाऊंगा ना, आपको चीजें समझ आती रहेंगी, बीच में आपकी कभी कोई क्वेरी हो। बेशक, रिपोर्ट के लिए बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, ठीक है। दैट इज वेरी गुड हेल्प। हाँ कोई नहीं, उसके लिए कर लेंगे। देखिए ये एक ट्रांजैक्शन कोड जो मैं आपको बता रहा था बेसिस कंसल्टेंट का काम होता है। तो आपने हुँ। ये रोल ओपन किया यहाँ हम्म। पे
जा नहीं रहा उसके अंदर किसी, मतलब उस वाले फर्दर डिटेल में जाने के बाद आपको फिर चेक करना है कि कौन सा टी कोड लगा हुआ है। उस टी कोड के आगे एक्टिविटी का वो भी होगा। हम्म। अच्छा। हाँ, बट आपको कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को खाली पहले क्लाइंट पे जाने की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि उनको लगा था मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे, बेसिस कंसल्टेंट ने मुझे समझा दिया, क्योंकि बेसिस कंसल्टेंट के साथ उठना बैठना चाय वाय पीते थे हम। उसको हम्म। लगा कि मैं समझ सकता हूँ, उसने मुझे समझाया और उसने मुझे एक्सेस दे दिया। मतलब अच्छा। मैनेजमेंट से डिस्कशन करने के बाद कि मैं इसका एक्सेस हम्म। इसको दे रहा हूँ और ये हम्म। एक्टिविटी ये कर लेगा। रोल असाइन कर सकता है अगर कोई नया रोल आता है। रोल असाइन करना, नया टी कोड डालना, एक्टिविटी हटाना, ये सब चीजें करना। कोई इशू आएगा रोल से रिगार्डिंग, ऑथराइजेशन रिगार्डिंग, तो पुनीत मैनेज कर लेगा। तो वो ठीक। मैंने किया था, इसलिए मुझे पता है। नहीं तो मैं शायद आपको आज पहले ही मना करता कि मुझे नहीं आता। ठीक है। ठीक है, और आपको करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कभी ऐसे आप किसी छोटी कंपनी में वहां पे देखने को मिल जाएगा, आपको वहीं पे समझ आ जाएगा। और अगर वो आपको दे दें एक्सेस तो आप काम भी कर लोगे। ठीक है। ठीक है। तो ओके। लेट्स सी कहाँ पे। तो ये वाली स्लाइड ना हम नेक्स्ट टाइम दोबारा करेंगे। एनहेंसमेंट तो कर लिए। चलो हम्म। फॉर्म और वर्कफ्लो डिस्कस करते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं। हम्म। फॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनवॉइस लेआउट। आप मार्केट में जाते हो कुछ बाय करने के लिए, सपोज आप गए टू बाय दी फोन। आप बाय करने के बाद यू विल गेट द इनवॉइस फ्रॉम द शॉपकीपर, कि आपको वो इनवॉइस देगा। उस इनवॉइस पे लिखा होगा कि यू आर परचेजिंग दिस फोन फ्रॉम विच शॉप, हु इज परचेजिंग, व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द टैक्स अमाउंट, सब कुछ डिटेल होगी। सो उसको कहते हैं इनवॉइस लेआउट। तो उस लेआउट को एससीपी में कहते हैं फॉर्म्स। उसको बनाने के लिए हमें वेपर की हेल्प चाहिए होती है। कि अगर मेरे पास कस्टमर के इनवॉइसेस क्रिएट करने हैं, तो वो एक लेआउट बनाएगा कि जब भी आप कस्टमर की इनवॉइस की पोस्टिंग करोगे, उसके बाद जो इनवॉइस आएगा किस फॉर्मेट में आएगा, वो फॉर्मेट जो है वेपर बनाता है। लॉजिक हम देंगे कि मेरा अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए, टैक्स अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए, उसके बाद उसका टोटल होना चाहिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आना चाहिए क्या परचेज किया है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आना चाहिए कि एड्रेस क्या है, सब कुछ। उसको कहते हैं फॉर्म्स। दैट विल बी ऑल्सो डन बाय a वेपर, but will get the logic from functional consultant. If these are differed from the standard हाँ forms that is हाँ हाँ हाँ, बट स्टैंडर्ड से हमेशा डिफर ही मिला है मुझे तो। मिला क्या, होता ही बराबर। है, क्योंकि एसएपी ने स्टैंडर्ड दे दिया जो उसको लगता है कि सभी कंपनीज में यूज हो सकता है। बट उसमें हम्म। मॉडिफिकेशन होते ही हैं। हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि मेरे को यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे ये रखना है, मुझे यहाँ पे ये देना है, सब कुछ। तो उसके लिए फॉर्म्स चाहिए होते हैं। चाहे वो उसी को कॉपी करके स्टैंडर्ड वाले को, उस दूसरे कॉपी करके उसमें एनहांस करे, या बिल्कुल नया बनाए। वो वेपर के ऊपर है कि उसको क्या लगता है कि मुझे कॉपी करके इजी लगता है या मेरे को नया बनाने में इजी लगेगा। क्योंकि कई बार कॉपी करने में इजी लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें उसने सही दी हैं जो बिजनेस मांग रहा है, बट एक दो चीजें हैं तो वो कॉपी कर लेता है। फिर उसी को चेंज कर देता है जो कॉपी किया। नहीं तो उसको लगता है कि बिजनेस इतनी सारी चीजें कह रहा है जो एसएपी ने नहीं दी, और गलत गलत मतलब अलग जगह पे है जो बिजनेस को नहीं चाहिए, तो वो फिर नया बना देता है। गॉट इट। ठीक है। ओके। अब आते हैं वर्कफ्लो पे। वर्कफ्लो क्या होता है कि जैसे कि सपोज आपके वेंडर का इनवॉइस आया। आपको दो टाइप के वेंडर के इनवॉइस आते हैं, एक आता है 1 लाख से नीचे के, 1 लाख, एक आता है 1 लाख से ऊपर के। आप चाहते हो वेन एवर यू आर गेटिंग द इनवॉइस विच आर बिलो 1 लाख, दैट इनवॉइस शुड गो टू एबीसी मैनेजर टू रिव्यू, टू अप्रूव एंड देन मेक अ पेमेंट। एंड इफ यू आर गेटिंग द इनवॉइस विच आर वैल्यू इज मोर देन 1 लाख, देन दिस इनवॉइस शुड गो टू XYZ मैनेजर टू चेक एंड रिव्यू एंड देन अप्रूव इट। सो दैट इज वर्कफ्लो। कि अगर मेरे पास 1 लाख से ज्यादा का इनवॉइस आया तो मेरे सीनियर मैनेजर को जाना चाहिए, वो चेक करेगा, वो अप्रूव करेगा और तब पेमेंट होगी। और अगर 1 लाख से नीचे का है तो मैनेजर लेवल पे चला जाए, वो चेक करेगा, वो अप्रूव करेगा और फिर पेमेंट हो जाएगी। सो इसे कहते हैं वर्कफ्लो। ठीक है। तो एंड एनी, ये अप्रूवल अथॉरिटी राइट, सॉरी। हाँ, अप्रूवल अथॉरिटी भी हम उस पर लगा सकते हैं कि मेरा अगर जो 1 लाख से नीचे का इनवॉइस है वो मैनेजर लेवल पे ही गॉट ऑथराइजेशन होना इट। चाहिए। और उस मैनेजर में भी मैं अपना ये लगा सकता हूँ कि मेरा उस, सपोज मैनेजर मेरे पास 4 या 5 है, उसमें से कौन ही अप्रूव अथॉरिटी है, मैं वो भी लगा सकता हूँ। तो सर एक चीज पूछना चाहूंगा इसमें। हम्म जैसे कोई अगर मैंने एक एप इनवॉइस आया बुक करने के लिए, ठीक है हम्म सर। मैंने बुक करा, उस पर अप्रूवल प्रोसेस लगा रखी है कि एबीसी उसको अप्रूव करेगा, ठीक है सर। हाँ हाँ हाँ। तो अभी मैंने बनाया, तो वो बना के सिस्टम अभी मेरे को ड्राफ्ट मोड में ही रखेगा ना, जब तक वो अप्रूव नहीं करेगा। वो आपका पार्क मोड पे, ड्राफ्ट मोड पे रख देगा। आप उसको हाँ पार्क कर दोगे, बोला अपनी इन्फॉर्मेशन सारी डाल दी, हाँ हाँ। आप उसको सेव कर दोगे, वो फिर उसके सिस्टम में वो चला कौन जाएगा। जाएगा सर? क्या कह रहे हो? उसके पास सामने वाले, जैसे एबीसी को मैंने। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक चला जाएगा। वो वर्कफ्लो वैसे डिजाइन होगा, जब भी वो यूजर ओपन करेगा ट्रांजेक्शन, हाँ हाँ। तो उसको दिख जाएगा इतने सारे इनवॉइसेस मेरे पास आ गए हैं जो मुझे चेक करने हैं और अप्रूव करने हैं। अप्रूव करते ही वो पोस्ट हो जाएगा। अच्छा, मतलब या इसके अंदर सर अप्रूव, अगर वो एबीसी बंदा करेगा तो अप्रूव करते ही वो पोस्ट हो जाएगा, मतलब वापस वो उसके ऑर्गेनाइजर के पास नहीं जाएगा वो। नहीं, आप ऑर्गेनाइजर के पास करना क्या, आपने डेटा डाल दिया, आप कह रहे हो कि मैंने जो डेटा डाला मुझे ठीक लग रहा है,
अब आप चेक करो, आप अप्रूव कर दो, मतलब देखो आप कुछ भी कर सकते हो, आप खाली अप्रूव करवा लो, वापस हाँ आपके पास आ जाएगा पोस्ट करने के लिए। तो हाँ वो हाँ भी ठीक हाँ। नहीं है, आप उसमें फिर चेंजेस कर दो फिर। नहीं, मेरे को यही समझना है कि जैसे कि अगर मैंने अभी एक 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 एपी इनवॉइस बनवाया, ठीक है सर? हम्म। उसका अप्रूवल लगा रखा है कि मेरा मैनेजर जाएगा, उसको चेक करेगा, ठीक है? वो हाँ हाँ। ऑथराइज़र है। हम्म। वो चेक करेगा और वो चेक करके उसको ऐड भी कर सकता है या फिर वापस भी भेज सकता है पोस्ट करने के हाँ लिए। हाँ हाँ, हाँ। मतलब उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट करेगा तो आपके पास वापस आ जाएगा, भाई ये चीज गलत है, इसको ठीक हुँ। कर लो। नहीं, नहीं, रिजेक्ट का तो मेरे को समझ में आ गया। मैं वो कहता हाँ, है कि मैं पोस्ट नहीं करूँगा, हाँ, मेरी तरफ से ओके है, तू ही पोस्ट कर दे आगे जाके। तो तो फिर ये देखो उसमें देखो हम थोड़ा और अपना दिमाग दौड़ाएंगे, हम क्या करेंगे, हुँ, मैनेजर अप्रूव करेगा तो पोस्ट नहीं होगा, मैनेजर अप्रूव हाँ, करेगा तो आपकी सारी स्क्रीन लॉक हो जाएगी कि आप हाँ, इसमें अब हाँ। और कुछ चेंज नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, यस, 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 हाँ। तो फिर वापस आपके पास आ जाएगा, आप पोस्ट कर दो जी। तो ये तो एक स्टैंडर्ड ही है ना सर इसके अंदर, इसमें तो कुछ ऐप-वैपर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं नहीं, पेपर की जरूरत पड़ती है, मतलब कुछ चीजें वही तो। स्टैंडर्ड दी हुई हैं, बट हाँ, जितना आप सोच रहे हो कि वो खाली अप्रूव करे और पोस्ट ना करे, तो ये हाँ। स्टैंडर्ड में नहीं है। नहीं है ना सर? हाँ, तो उसके लिए फिर आपको फिर एनहांस करना पड़ता है, मैं और समझ गया। वो फिर आपके पास आएगा कि हाँ मेरे मैनेजर ने चेक कर ली है, अप्रूव कर हाँ, दिया, अब मैं पोस्ट का बटन दबा दूं, पोस्ट कर दो। बट मैं चेंज कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अप्रूव हो गया। और स्टैंडर्ड के अंदर ये एस4 में स्टैंडर्ड में यही है कि वो मैनेजर अप्रूव कर देगा और उसे पोस्ट कर देगा। नहीं यही नहीं नहीं, है ना? देखो ऐसे ऐसे नहीं है, हाँ, ये वर्क फ्लो जो है हाँ। अलग अलग हैं, वो आपको ढूंढने पड़ते हैं कि किस टाइप के वर्क फ्लो हैं। अच्छा, एपी का वर्क फ्लो है या नहीं है, एसएपी ने दिया है उसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। जैसे कि अभी मैं पिछले प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो वहाँ पे वर्क फ्लो ऐसा था कि हम यहाँ से डेटा डालते थे, उसके बाद जाता था, वो अप्रूव करता था और वो पोस्ट हो जाता था। ओके। अगर आप अच्छा, चाहते वो अप्रूव करे उसके बाद वापस आपके पास जाए, तो ये हाँ, एनहांसमेंट हो गई। ओके। तो आप में ये जो अभी जो स्टैंडर्ड एस4 ने दे रखा है वो क्या है, मतलब कुछ आइडिया है ऐसे छोटा-सा? वो मैं या तो आपको दिखा दूंगा, मेरे पास क्लाइंट सिस्टम पे है, बट वो क्लाइंट सिस्टम पे है, ये मैं जैसे मैं अभी आपको क्लासेस ले रहा हूँ पर्सनल पे ले रहा हूँ, तो उस हुँ। क्लाइंट सिस्टम पे मैं कुछ भी पर्सनल नहीं कर सकता। नहीं, हम्म पर्सनल की नहीं, वैसे ही अगर मतलब जैसे अगर हम मैं आपको ना कुछ काम करूंगा, मैं स्क्रीनशॉट लेके जैसे फोन हाँ, से हाँ, हाँ, हाँ। स्क्रीन्स पता लेके तो चल जाए ना मैं मतलब आपको इसमें प्रोसेस चलता क्या थोड़ा है। बता दूंगा, बट मैं हुँ। उसमें सिस्टम में नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि नहीं, वो नहीं वो क्लाइंट सिस्टम ही क्लाइंट का है, मतलब लैपटॉप ही क्लाइंट का है। नहीं वो मैं समझ गया हाँ, आपकी बात, वो बाकी तो मैं चाहे तो हम कुछ कर सकते डॉक्यूमेंट बना के ना हैं। हुँ, हुँ। वर्क फ्लो का किसी क्लास में आपको बता दूंगा। तो जो अभी हमें टेस्ट डेटाबेस दिया हुआ है आप लोगों ने, मतलब हाँ। जैसे सूरज ने, तो उसके अंदर वर्कफ़्लो नहीं चलेगा मतलब? नहीं नहीं नहीं, वर्क फ्लो नहीं चलेगा अभी, हाँ, यही क्योंकि देख समझ। लिमिटेशन है टेस्ट की, लिमिटेशन है क्लाइंट सिस्टम की। क्लाइंट ने वो उसका लाइसेंस ले रखा है वर्क फ्लो हम्म का और उस ओके। फंक्शनैलिटी का। तो सर एक उस चीज़ बताओ, ये जो अपना ऑन प्रेमाइसेस और ऑन क्लाउड होता है, तो दोनों पे ही लाइसेंस लेने पड़ते हैं वर्कफ़्लो के? डिपेंड करता है, हाँ। अच्छा। देखो आपको एक पैकेज मिला, आपने मोबाइल लिया, उसके बाद आपको हुँ, सिम मिल गई, तो ये एक पैकेज है। आपने ओके। मोबाइल लिया, आपको सिम नहीं मिली, और आपको मोबाइल मिला, सिम मिली, साथ में आपको टॉक टाइम भी मिल गया, तो एक पैकेज है। तो वो डिपेंड करता है कि बिजनेस, क्योंकि ये सेल्स का काम है, हाँ, सेल्स वो वाले सेल्स को। वाले बेच के आता है ना सर हाँ, सॉफ्टवेयर को सेल्स वाले तुम्हारे। बेच के आते हैं हुँ, बिजनेस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और अपने हुँ, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कि मेरे को किस में प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये तो हाँ। हर जगह चलता है। हाँ, नहीं वो तो सब्जी लेने भी जाओगे, वो कहेगा ये वाली सब्जी अच्छी है, क्योंकि उसको पता है भाई हुँ, सुबह से बिकी नहीं है, उतनी इसी है को तो ये बेचनी बेचना तो है ही हमारे है। को। हाँ, तो ऐसा ही है ठीक। मतलब सब एक कुछ। मोटा-मोटी ना सर इसकी एक वो पीपीटी बना लेना, मतलब मेरे हाँ, को तो वो मैं बना लूंगा, जो हाँ, क्लाइंट सिस्टम से निकाल के, कि हुँ, क्लाइंट से मैं फोटो वोटो लेके वो मैं हाँ, बना लूंगा आपके लिए। हाँ, थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि क्या चलता हाँ है, क्योंकि अपने हाँ जो B1 में है ना वो तो स्टैंडर्ड है, उसमें यही चलता है जो मैंने आपसे प्रोसेस पूछी थी। हाँ हाँ हाँ। तो नहीं मेरे देखो, को इसमें इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि कौन से वर्कफ्लो हैं, और भी बहुत सारे वर्कफ्लो होते हैं, बैंकिंग के भी होते हैं ये सब। अब हाँ, 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 वो उस पे आपको प्रैक्टिकलिटी तभी मिलेगी जब आप सिस्टम में क्लाइंट पे काम काम करने लग करोगे। जाएँगे। सर अब इसके अंदर मेरे को एक चीज़ पूछनी थी, बस एक 1 मिनट और लूँगा। हम्म, अप्रूवल प्रोसेस और वर्कफ्लो दोनों चीज़ें अलग-अलग है या एक ही चीज़ है? अलग अलग भी कर सकते हो, आप एक ही चीज भी कर सकते हो। तो आपको दोनों अप्रूवल के लिए वर्कफ्लो मुझे बना दिया लाइसेंस चाहिए होंगे? है। दोनों के लिए लाइसेंस चाहिए होंगे इसमें? यार वो सेल्स का काम है, वैसे मैं वही दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो हमारा B1 है ना, उसके अंदर वर्कफ़्लो का हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, अप्रूवल प्रोसेस हमारी स्टैंडर्ड चलती है। तो मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था कि दोनों के लिए लाइसेंस लेने पड़ेंगे उसमें। देखो देखो, B1 में ना आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, क्योंकि B1 में एक ही बंदा सब कुछ कर रहा होता है। हाँ, एसएपी में जब आप आओगे ना, आपको ये हाँ। सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन अगले 10 साल तक भी नहीं मिलेगी। चलो ठीक तो है। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि B1 में आप भी सब कुछ कर रहे हो, एसडी भी हाँ, कर रहे होगे मेरे ख्याल से, हाँ। एमएम भी मैं तो कर रहे सारा होगे। ही कर रहा हूँ सर, मेरे तो 4 प्रोजेक्ट तो जा चुके हैं, हैंडओवर भी हो चुके हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप एसडी भी कर रहे हो, एमएम भी कर रहे हो, एफआई हाँ। भी। एसएपी एस4 हाना में आओगे ना, मतलब एसएपी में आओगे जब, हुँ, हुँ। कंप्लीट एसएपी, या ईसीसी में जाओ या एस4 हाना में, हुँ, हुँ। आप फाइनेंस भी अगले 5 साल तक कंप्लीट नहीं कर पाओगे। मतलब इतना वास्ट है मतलब।
मैं कह रहा हूँ कि अगर अभी मैं 9 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का है मेरे को एसएपी में एज अ फीको कंसल्टेंट। अगले 5 साल बाद भी आप मुझे मिलोगे ना, मैं यही कहूंगा कि मेरा एसएपी फीको कंप्लीट नहीं हुआ। ओके। मतलब अगले पूरा 40 साल बाद भी मैं यही कहूंगा, रिटायरमेंट मतलब के बाद भी यही कहूंगा। मतलब इसके अंदर इनहेंसमेंट चलती रहती है, नई नई चीजें आती रहती है, मतलब जितना। एनहांसमेंट छोड़ो, आप स्टैंडर्ड भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अच्छा। मैंने जब जिस कंपनी में अभी हूँ उस कंपनी में जब आया था तो मैंने यूरोपियन के टैक्स पे काम किया था। ओके। जो उससे पहले मैंने इंडिया में जीएसटी पे किया था, तो मुझे लगा था टैक्स सेम होगा, सब कुछ अलग है। अब नहीं मैंने नहीं। यूरोपियन पे करने के बाद भी, अब मैं यूएस के टैक्स पे अभी भी मैंने काम नहीं किया, कनाडा के टैक्स पे अभी भी काम नहीं किया मैंने, ब्राजील के टैक्स पे अभी भी काम नहीं किया। सबसे टफेस्ट टैक्स ब्राजील का है। और हम्म, यूरोप पे टैक्स पे काम कर लिया उसके बाद भी अभी भी मुझे सारी चीजें नहीं आती। ओके ओके तो ओके। एसएपी आप फीको कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। मतलब फीको ही नहीं कर पाएंगे, एमएम में और पी उसके अंदर भी ऐसा फीको ही ही है? नहीं कर पाओगे, सब में ही ऐसा है। सब में ही ऐसा है ना, वही मैं सब सोच में ही रहा ऐसा है। अगर आप कह रहे हो कि लीज अकाउंटिंग छोटा मॉड्यूल है, शायद वो कर लोगे। हूँ। जैसे लीज अकाउंटिंग कल हम बात कर रहे थे, हम्म। ट्रेजरी भी नहीं कर पाओगे। ट्रेजरी के तो आपको मार्केट में कंसल्टेंट ही नहीं मिलेंगे। अच्छा, तो फिर ये ट्रेजरी निकाला ही क्यों ऐसा इन्होंने? नहीं, मतलब इतने तो मिलेंगे जी, कल काम चल जाए। मेरा हाँ। दोस्त भी एक ट्रेजरी कंसल्टेंट है, और एक मेरा दोस्त है जो कंपनी चला रहा है ट्रेजरी के, ये प्रोजेक्ट पकड़ता है। ओके। तो हैं, बट जैसे फीको की डिमांड है और फीको के बंदे हैं, वैसे ट्रेजरी की बंदे नहीं है। डिमांड डिमांड भी नहीं कहूंगा उतनी है, बट डिमांड सप्लाई का गेम होता है हर जगह पे। फीको की अगर बिल्कुल सही डिमांड बात। है 100 बंदे चाहिए और आपके पास 120 हैं, तो आपके पास एक्सेस डिमांड, वो एक्सेस वो सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई है ना। ट्रेजरी में क्या 10 ही डिमांड है, पर कंसल्टेंट आपके पास 5 है, तो आपकी डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। तो ओके। ये है, बट ये है कि वो 10 जगह प्रोजेक्ट पे टीएम चाहिए होता है, और जो एससीपी फीको है वो 100 के 100 प्रोजेक्ट पे चाहिए होता है। ओके ओके। तो ऐसे हो जाता है। हम्म, ठीक है ठीक है। ठीक।